हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है और जो है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक एग्ज़ाम में इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, डायरेक्ट जो है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है। ओके, और इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या। सो क्लैपेरॉन इक्वेशन, it is an important equation for one component two phase systems that derived by Clapeyron from the second law of thermodynamics. इसको जो है second law of thermodynamics से derive किया गया है. These are the some two phase system that are in equilibrium, solid liquid, that process at melting point. If any solid change to liquid in equilibrium, that melting points of the solid liquid vapor, that boiling point of the solid liquid, and solid vapor, that sublimation temperature of the solid. अब हम बात करेंगे लिक्विड वेपर के बारे में, जो कि ये जो इक्वेशन है लिक्विड बेस्ड वेपर बेस्ड डिराइव किया गया. So I'm not going in details. So here is the equation dP upon dt is equal to del H vaporization upon T in bracket VV minus VL, where del H vaporization is molar heat of vaporization and VV is the volume of the vapor state, VL is the volume of the liquid states. Okay, so this equation is vapor liquid based equation, vapor to liquid. Okay, so अब हम बात करेंगे कुछ points की. If the system consists of water at freezing points, then the two phase in equilibrium will be solid ice liquids. अब इक्वेशन जो वन जो है बदल जाएगी कुछ इस तरह. वहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा था डेल एच का, यहाँ पे फ्यूजन होगा क्योंकि सॉलिड जो आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रही, वहाँ पे जो है वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा, वेपराइजेशन हो रहा था, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा. ठीक है, सो द इक्वेशन विल बी like this: dP upon dt and del S fusion upon T in bracket VL minus VS, where del H FUS called the molar heat fusion of ice. अब हम जो बात करेंगे वो क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में, जो इंटीग्रेशन फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे, और यहीं से जो है हमको मिलता है क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन. जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको क्लैपेरॉन इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है वेपराइजेशन वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन, अब इसका इंटीग्रेशन हम जब करेंगे तो हमको जो है कुछ, और ये इंटीग्रेशन जो है किस में होगा, वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड टू वेपर फेज इक्विलिब्रियम में. So here this is the equation: del P upon del T is equal to del H vaporization upon T Vg. Okay, because here the volume of gas is higher than the volume of liquid, so here liquid is neglecting, that's why here only putting Vg, volume of vapor or gas. Okay, and I have here we have used for actually I'm not going details step by step how we solve the Clausius equation, but initially how they converted this Clapeyron equation into this equation in integration form. So here
as we know, for ideal gas, PV is equal to RT. So here we used VG. So here VG is equal to RT upon P. So here I put it the value of VG, and you will get this equation, integration from P1 to P2, and d ln P is equal to del H vaporization upon R. Okay. Here if I put the value of Vg, then P will go upside and RT will be bottom side. So RT का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड ऊपर साइड dt रहेगा, बिकॉज दिस डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर में चला जाएगा ट्रांस में. So you will get this equation. After integration of this equation, you will get this equation, ln P2 upon P1 and del H vaporization upon R and T2 minus T1 into 2. So this is very important equation, and this equation called the Clapeyron-Clapeyron equation. Okay. अब हम बात करेंगे, ये तो रहा फार्मूला की बात, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे. So this is the question. Here question is saying that vapor pressure of water at 95 degrees centigrade and 100 degrees centigrade are, vapor pressure दिया है 634 mm and 776 mm respectively. अब यहाँ कैलकुलेट करना है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, del H vaporization of water between this temperature 95 डिग्री to 95 डिग्री एंड 100 डिग्री से. अब हम जो है देखेंगे कि यहाँ पे del H vaporization पूछ रहा है और प्रेशर भी दिया है, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए हमको क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन लगाना है, बिकॉज उसमें जो है टेम्परेचर की बात हुई नहीं है, T1 T2 टेम्परेचर है नहीं, बट सेकंड इक्वेशन में क्लैपेरॉन-क्लासियस इक्वेशन में हम T1 T2 की बात किए, तो हमको यही इक्वेशन लगाना पड़ेगा. ओके. सो अब देखते हैं पहले कि क्या दिया है. T1 दिया है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. और P1 दिया है, P2 दिया है, और अब हमको इसको केल्विन में चेंज करना है. 273 प्लस 95 कर देंगे तो हमको 368 केल्विन आ जाएगा T1, और T2 जो है सिमिलरली 373 केल्विन आ जाएगा. अब हमको वेपराइजेशन del H वेपराइजेशन कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला जस्ट यहाँ पे लिख देना है और वो वैल्यू पुट कर देना, P1 P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है. del H हमको निकालना है, del H वेपराइजेशन निकालना है. ओके. तो और R की वैल्यू हो के जो गैस कांस्टेंट है R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे रख देना है. So you will get easily this value and in kilo joule per mole. So delta H की वैल्यू 41.363 kilojoule per mole inverse. Okay, I hope you understood the solution of this problem. Okay, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग वेपर प्रेशर ऑफ आइस to water system at vapor pressure दिया है, ice to water system at this temperature is इतना 4.58 mm and 0 degree centigrade is given, the pressure is 759.80 mm of mercury. अब हमको कैलकुलेट करना है the molar heat of fusion, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. फ्यूजन वाला फार्मूला लगाएंगे जो सेकेंड वाला था, फर्स्ट वाला तो वेपराइजेशन वाला था, और सेकेंड वाला जो कैलकुलेट कर रहे थे वो फ्यूजन वाला था. और गिवन दैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर
एट दिस टेम्परेचर इज इतना एंड इतना, ओके, एंड रिस्पेक्टिवली। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी भी दिया है इतना, तो हमको कैलकुलेट करना है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सो यहाँ पे पहले देख लेंगे कि क्या क्या दिया है। P1 की वैल्यू दिया है 4.58 mm, P2 की वैल्यू दिया है 759, फ्यूजन निकालना है। Vs वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ आइस आर सॉलिड यहाँ पे दिया है 1.0907 सेंटीमीटर क्यूब, और Vl लिक्विड की वैल्यू दिया है वाटर की 1.0001 सेंटीमीटर। अब जो है इन वैल्यूओं को हमको, बिकॉज दिस सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, तो अब हमको इनको जो है मॉलिक्यूलर वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है ग्राम पर मोल से। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है ग्राम पर मोल, और इसका जो है वॉल्यूम है सॉलिड का 1.0907। ये ग्राम पर मोल है इसका यूनिट, इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा मोल इनवर्स। मोल वही जो डाउन में मोल था डिनोमिनेटर में, वो मोल ऊपर चढ़ा जाएगा, और दिस सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम और ग्राम पर मोल, वो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो यू विल गेट 19.63 into 10⁻⁻⁶ मोल क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब मोल इनवर्स। सिमिलरली VL भी वाटर का भी कैलकुलेट करेंगे, CU विल गेट 18 into 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब मोल इनवर्स, ओके। सो VS एंड VL की वैल्यू मिल गई। और T की वैल्यू जो है दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 कैल्विन हो जाएगा हमको हमारा। और dt जो dt की वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको dp मिल गया, और कुछ क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ आइस इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो dp/dt की वैल्यू जो है हमको नेगेटिव साइन में लिखना पड़ेगा, ओके। और यह क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, तभी तो आइस जो है मेल्ट करेगी ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी, dp/dt की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। देन यू विल गेट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है चेंज हो जाएगी किस फॉर्म में, माइनस फॉर्म में। तो dp/dt इज इक्वल टू माइनस ∆S फ्यूजन अपॉन TVLVS, ओके। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डायरेक्ट हमको ∆H फ्यूजन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ये देखिए जो है इसके साथ dp के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जीट नीचे रहेगा। तो हमको ∆H फ्यूजन की वैल्यू निकालना है, तो माइनस dp की वैल्यू निकाले थे पिछले में, कितना था 111000685 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। मीटर इनवर्स मीटर -2, ओके। सो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और टी की वैल्यू दिया है 273, ये टी की वैल्यू 273 केल्विन, ये भी रख दिया। और VL माइनस VS की वैल्यू तो वहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ये VL की वैल्यू, ये जो 19 VS की आएगी 0.63 और 18 इसकी आएगी, तो ये वैल्यू जो है इसमें रख देंगे। और
सॉल्व करेंगे और dt की वैल्यू भी दिया है उधर, तो सॉल्व करेंगे ये सारा, तो हमको कुछ डेल एच फ्यूजन की वैल्यू इतना आएगी, इतना किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 5.973 किलो जूल पर मोल. So I hope you understood also this second problem solution. So यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.